آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ بھارت اور انڈونیشیا نے مختلف شعبوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے کے لیے کیے متعدد معاہدوں پر دستخط۔ 15ویں قومی ووٹرز ڈے کے سلسلے میں تقاریب کا انعقاد۔ چناؤ کے احسن انعقاد میں اپنا مؤثر رول ادا کرنے کے لیے کئی شخصیات ایوارڈ سے سرفراز۔ ملک میں کل 76واں یوم جمہوریہ شایان شان طریقے پر منانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ اور کٹرا سے بڑگام تک وندے بھارت ریل گاڑی کی کامیاب ٹرائل رن۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور انڈونیشیا نے آج طبی نگہداشت، روایتی ادویات، ساحلی سلامتی، ثقافتی تبادلوں اور ڈیجیٹل ترقی میں متعدد مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ اس تعلق سے آج نئی دلی میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانٹو اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان دو طرفہ بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پریس بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں نے میری ٹائم سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی، دہشت گردی اور انتہا پسندی مخالف شعبوں میں اشتراک کرنے اور دیگر شعبوں کو بلندیوں تک لے جانے سے اتفاق کیا ہے۔ آج ملک بھر میں 15واں قومی ووٹرز ڈے منایا گیا۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں کئی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मरकजी तकरीब में शिरकत करते हुए कहा, मतदाताओं में लोकतंत्र के प्रति पूर्ण आस्था के साथ साथ ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि ये हर प्रकार की संकीर्णता, भेदभाव तथा प्रलोभन से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रबुद्ध मतदाता हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा लोकतंत्र विश्व समुदाय के लिए नई आदर्श प्रस्तुत करता रहेगा और इस यात्रा में हमारे मतदाता तथा निर्वाचन आयोग भागीदारी और उत्कृष्टता के नई प्रतिमान स्थापित करते रहेंगे। اس موقع پر صدر جمہوریہ نے ملک میں الیکشن کے احسن انعقاد میں نمایاں رول ادا کرنے کے لیے مختلف شخصیات کو ایوارڈز عطا کیے۔ ایوارڈ پانے والوں میں جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل افسر پی کے پولے، ڈوڈا کے ضلع چناؤ آفیسر ہروندر سنگھ اور پلوامہ ضلع کی SSP شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو مبارکباد دی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ پچھلے سال جموں کشمیر میں منعقدہ لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں لوگوں کی بڑھ چڑھ کر شرکت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں کے لوگ جمہوری اقدار اور نظام میں بھرپور اعتماد کرتے ہیں۔ جموں میں 15ویں قومی ووٹرز ڈے کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے LG نے کہا کہ ہمارا ثقافتی منظرنامہ آزادی، مساوات اور شمولیت کی جمہوری اقدار پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، جسے عام شہریوں کو ایک باوقار زندگی گزارنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اسٹیٹ یوٹی ایوارڈ کے لیے جموں کشمیر کو سمانت کیے جانے کی آپ سب کو ہردے سے بہت بدھائی دیتا ہوں۔ لوک سبھا چناؤ میں پچھلے 35 برسوں میں کسی بھی عام چناؤ سے سب سے زیادہ متدان پچھلے لوک سبھا چناؤ میں ہوا۔ متداتاؤں کی سکریہ بھاگیداری نے جموں کشمیر کے لوکتنتر کی ساتھ کیول دیش میں نہیں بلکہ دنیا میں بڑھائی۔ لوکتانترک مولیوں میں بڑھ چڑھ کر یہاں کی عوام نے آستھا ویکت کی۔ یہ لوکتنتر میں جموں کشمیر کی جنتا کے وشواس کو بھی پرتبمبت کرتا ہے تتھا ایک سکاراتمک اور سکھد بدلاؤ کی اور بھی اشارہ کرتا ہے۔ تقریب کے دوران کئی افسروں کو اعزازات سے سرفراز کیا گیا۔ 15ویں نیشنل ووٹرز ڈے کے سلسلے میں آج کالج آف ایجوکیشن سری نگر میں صوبائی کمشنر کشمیر وی کے بدھوری کی صدارت میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے دوران ملک کی ترقی میں پورے جمہوری عمل، خاص طور سے ووٹنگ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر پچھلے برس پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا اور کئی نئے ووٹروں میں الیکشن کارڈز تقسیم کیے گئے۔ صوبائی کمشنر نے کہا کہ نوجوان پود کو پہلے سے ہی ووٹنگ کی افادیت کے بارے میں روشناس کیا جانا چاہیے۔ تقریب پر ڈپٹی کمشنر سری نگر بلال محی الدین بٹ اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی 15ویں قومی ووٹرز دن کے سلسلے میں متعدد تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سول سیکریٹریٹ جموں میں انتظامی سیکرٹریوں نیز دیگر افسروں اور اہلکاروں کو جمہوریت کی تمام قدروں کی پاسداری کرنے کا حلف دلایا۔
नेशनल वोटर्स डे के मौके पर जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। 25 जनवरी 1950, 75 साल पहले भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। उसी स्थापना को मद्देनजर रखते हुए 25 जनवरी हर साल भारत निर्वाचन आयोग जो एस्टेब्लिशमेंट दिन है उसको हम नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाते हैं। वोटर्स को ये दिन डेडिकेटेड किया है। इलेक्शंस में अलग अलग स्टेक होल्डर्स रहते हैं, तो हमारा मेन सेंट्रल स्टेक होल्डर्स रहता है वोटर, जिसकी अहमियत डेमोक्रेसी में काफी है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो वोटर्स को अवेयर करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, इस मकसद के हिसाब से नेशनल वोटर्स डे हर साल मनाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वोटर्स डे के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि वोट के जरिए से ही लोग अपने मसाइल हल करा सकते हैं और इसके जरिए ही वो अपने मयार जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज वजीर आला के मुशीर नासिर असलम के हमरा बडगाम जिले का दौरा करके तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्ला भी मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतल्लिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस akashvani.srinagarnews@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। मुल्क में कल शाया निशान तरीके पर 76वां यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुनक्किद होगी, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कौमी झंडा फहराकर मार्च पास्ट पर सलामी लेंगी। उधर जम्मू कश्मीर में यूटी सतह की सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आज़ाद मेमोरियल स्टेडियम जम्मू में मुनक्किद होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कौमी परचम फहराकर परेड का मुआयना करेंगे। इस तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वादी में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जहां मेहमान खुसूसी कौमी तिरंगा फहराकर परेड पर सलामी लेंगे। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया तकरीबात के अहसन इनेकाद के लिए सलामती समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू यौम जमहूरिया के सिलसिले में आज शाम 7 बजे कौम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया के इस खिताब को आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिए के बाद खिताब का अंग्रेजी नशरिया पेश होगा। आकाशवाणी के इलाकाई नेटवर्क पर खिताब का तर्जुमा रात 9:30 बजे नश्र किया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का यौम जमहूरिया के मौके पर कौम के नाम खिताब आज रात 8 बजे नश्र किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यौम जमहूरिया के मौके पर मेडल फॉर गैलेंट्री, बेहतरीन खदमात के लिए प्रेसिडेंट्स मेडल और मेरिटोरियस खदमात के लिए अवार्ड हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों और अफसरों को मुबारकबाद दी। IGP कश्मीर VK बिरदी ने भी अवार्ड हासिल करने वाले अफसरों और एहलकारों को मुबारकबाद दी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। उधमपुर बारामूला रेलवे लाइन पर आज कटरा से बडगाम तक वंदे भारत रेलगाड़ी का कामयाबी के साथ ट्रायल रन मुकम्मल किया गया। शुमाली रेलवे के चीफ एरिया मैनेजर श्रीनगर साकिब यूसुफ ने इस बारे में हमारे नुमाइंदे सईद मुबश्शिर रुफाई के साथ बात करते हुए कहा, आज एक हिस्टोरिक डे है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि कश्मीर देश के रेल नेटवर्क के साथ बाय ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी कनेक्ट हो जाए, वो आज पूरा हुआ है। आज कटरा से एक वंदे भारत रेक जो कि स्पेशली डिजाइंड है कश्मीर वैली के ठंड के लिए और पहाड़ी टेरेन के लिए, उसके लिए जो इंडिजिनियसली डिजाइंड और डेवलप्ड वंदे भारत रेक है वो आज कटरा से चल के बडगाम आ चुका है। मुल्की सतह पर समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा देने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ
अभियान को बहुत ताकत देते हैं। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए हर सतह पर काविशें जारी हैं। इस हवाले से जब हमने वादी के एक मारूफ ब्रॉडकास्टर अब्दुल रहमान भट्ट के साथ बात की तो उन्होंने कहा, हमारी ये हसीन वादी जिसे फक्र से पिरवर कहकर पुकारा जाता है, नशे के मुहित साये में गिरी जा रही है और यह मनहूस साया हमारी आने वाली नस्ल को तबाही के दहाने पर ले जा रहा है। आइए हम सब मिलकर से नो टू ड्रग मुहिम का हिस्सा बनकर अपनी समाजी और दीनी जिम्मेदारी पूरा करने की सही करें। हमें न सिर्फ फूल जैसी इन नन्ही कलियों को बचाना है बल्कि जहरीले कारोबार में मुलवस काले चेहरों को भी बेनकाब करना होगा। इनके खिलाफ सख्त कानून बनाने और पुलिस की कार्रवाइयों की हौसला अफजाई करने की अशद जरूरत है। आइए हम सब मिलकर इस बिद्दत का गला कमा करने का अहद करें। आज सियाहत का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद मुल्क के सयाहती वसाइल और इक्तिसादी व समाजी शोबे में इस सेक्टर की अहमियत को उजागर करना है। पेश है इस सिलसिले में हमारे नामनिगार मुबश्शिर रुफाई की ये रिपोर्ट। ये दिन मुल्क की कुदरती खूबसूरती, तहजीबी तनव्वु, अनमोल विरसे और सकाफती सफारतकारी को जाहिर करने का एक मौका फराहम करता है। ये दिन सयाहों को जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के दीगर इलाकों में नए नए सियाहती मकामात को खोज निकालने और उनकी सैर पर जाने की तहरीक भी बख्शता है और इस तरह समाजी व इक्तिसादी तरक्की को नए पंख मिल जाते हैं। जम्मू कश्मीर के सियाहती सेक्टर की वुसअत को मद्देनजर रखते हुए आज के दिन के तनाजुर में हमने ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के सदर रऊफ त्रम्बो के साथ बात की। 2024 टूरिस्ट अराइवल्स के लिए बहुत ही सूदबुंद टाइम रहा वो हमारे लिए। मजबूरी तो देखा जाए तो तकरीबन 1.5 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर की तफरीह की। इस साल जनवरी से ही एक खुशाइंदा ट्रेंड नजर आ रही है हमें, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा सयाहों ने 1 जनवरी से सैर की। अब ये ट्रेंड जो है अगर ये बरकरार रही जैसे पिछले 3-4 सालों से हमारे मुल्क में रही है तो इस साल एक और बम्पर टूरिज्म सीजन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। कश्मीर अपनी मुनफरिद सियाहती सलाहियतों के लिए मशहूर है और यहाँ के लोगों ने मेहमान नवाजी के लिए अपनी एक अलग शनाख्त कायम की है। अलबत्ता जरूरत इस बात की है कि कश्मीरी मसनूआत और दस्तकारी अशिया को उनके असल पैराए में असल तख्लीकियत के साथ फरोग दिया जाए ताकि गलत जहनीत रखने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हमारे मेहमानों को धोखा देकर सियाहत के शोबे के साथ वाबस्ता रास्त लोगों के विकार को जख्म न पहुंचा सकें। सैयद मुबश्शिर रुफाई, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। अमेरिका में बर्फ से मुजस्समे बनाने के मुकाबलों में भारतीय टीम को तीसरी पोजीशन हासिल हुई है। वाज़ह रहे कि इन मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के ज़ोहरुद्दीन लोन और सुहेल मोहम्मद खान के अलावा यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले मैतुल उपाध्याय ने की। मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर ज़ोहरुद्दीन लोन ने शुबह खबर के साथ बात करते हुए कहा, काफ़ी अच्छा रहा, बहुत टफ था क्योंकि अलग अलग मुल्क से आर्टिस्ट आए थे और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट थे। काफ़ी अच्छे टूल्स, इक्विपमेंट थे उनके पास। हमारे पास इक्विपमेंट ना होने के बावजूद भी हम लोगों ने बराबर उनके साथ कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन साथ साथ में हमें एक अच्छी एक्सपीरियंस भी मिली। जजमेंट के दौरान टीम जर्मनी को पहली पोजीशन हासिल हुई, मैक्सिको को दूसरी पोजीशन हासिल हुई और टीम इंडिया यानी कि हमारी टीम को 3rd पोजीशन हासिल हुई। काफ़ी खुश है हम लोग कि हम लोगों ने इंडिया को USA में रिप्रेजेंट किया है। जम्मू कश्मीर में 100 दिनों पर मुश्तमिल तपदिक मुखालिफ मुहिम शद्दोमद से जारी है। मुहिम से कई एक तपदिक बीमार मुस्तफीद हुए हैं और ये मरीज सेहतियाब होकर मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सेहतियाब हुए एक मरीज ने अपने तासुरात कुछ इस तरह बयान किए। तम पे खो मे पाने दवा हद खो ज्यादा मगर फर्क गई नहीं पे गोस डॉक्टर साहब निश तमो करनोस बह टेस्ट बे करनोस एक्सरे तत वन मे थोड़ा बहुत टीबी असरात तो तम पे लिख मे तमो 6 रेतन पे कोर्स दवा। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:33 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:54 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ जाता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।